So give the heading temperature dependence of resistivity. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या संबंध है और वो कैसे ऊपर नीचे होता है. ठीक है, आपको पता है वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट रो दैट इज रेजिस्टिविटी दिस वाज इक्वल टू क्या m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, है ना, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. ठीक है, अगर मान लो I increase the temperature, what will happen? The electrons will start colliding more frequently. If I increase the temperature, the electrons will gain more energy and they will start to move faster. And if they start to move faster, they will start to collide more frequently. As a result, the relaxation time tau will decrease. समझ आ रहा है ना? As a result, the relaxation time tau will decrease, and we all know that rho is inversely proportional to tau. अगर tau decrease होगा तो rho क्या होगा? बढ़ जाएगा. Just note this part. The resistivity of any material depends on the resistivity of any material depends on the number density of the electrons n, and the mean collision time tau. ठीक है ना? For metals, number density is almost independent of temperature. For metals, number density is almost independent of temperature. Hence, the resistivity of a metal increases with increase in temperature. Hence, the resistivity of a conductor increases with increase in temperature because the relaxation time gets reduced. You can write एक फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, अपने लास्ट में पढ़ा होगा इस टाइप का. रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट. रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, where alpha is the temperature coefficient of resistivity. अल्फा क्या है? Temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. एक चीज और लिख लो. For most of the metals, resistivity increases linearly with increase in temperature. For most of the metals, resistivity increases linearly with increase in the temperature. इसीलिए ऐसा फार्मूला आया है ना, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा इंटू रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट. इसीलिए ऐसा आया है ना, जो इनिशियल वैल्यू था प्लस एक लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. टी माइनस टी नॉट क्या होगा? चेंज इन द टेम्परेचर, है ना. आप फटाफट नोट कर लो इस चीज को. अल्फा कितना बन जाएगा? इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्या बन जाएगा? रो माइनस रो नॉट, है ना, अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट. समझ में आ रहा है?
the temperature coefficient of resistivity, the temperature coefficient of resistivity, the temperature coefficient of resistivity alpha is defined as the increase in resistivity is defined as the increase, that is rho minus rho naught. ये क्या है? Increase in resistivity per unit original resistivity, per unit initial resistivity, है ना? Increase in resistivity per unit initial resistivity per degree rise in temperature, per degree rise in temperature. अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रो नॉट इंटू डी रो बाय, ये भी लिख सकते हैं. इसका अल्फा का यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस. अल्फा का यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस. ये जो आपका इक्वेशन है रो वाला, अगर इसको हम आर के टर्म्स में लिख दें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी. आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, वेयर आर टी या आर इज इक्वल टू टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट is temperature at 0 degree Celsius, and T is equal to rise in temperature. ठीक है. ठीक है क्या? अब हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पे. तो लिखिए फॉर सेमीकंडक्टर्स, अगला है फॉर सेमीकंडक्टर्स the relaxation time does not change with temperature. The relaxation time does not change with temperature, but the number density of free electrons increases exponentially with temperature. But the number density of free electrons increases exponentially with increase in temperature. In semiconductors, the relaxation time tau does not change with temperature, but the number density of free electrons increases exponentially with the increase in temperature. So, the conductivity increases and resistivity decreases. So, conductivity increases and resistivity decreases. हमने क्या बताया था आपको कि रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ कहा था ना हमने. तो मतलब रो वॉज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n नंबर डेंसिटी. अगर नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी घट जाएगा. समझ में आ रहा है? In semiconductors, the number density increases exponentially with rise in temperature. वहां पर एक बैंड एनर्जी गैप होता है, इलेक्ट्रॉन को खाली उसको पास करना होता है. ठीक है, जैसे ही हल्का सा तुम हीट दोगे उसको हल्का सा एनर्जी दोगे, वो क्रॉस कर जाएगा. तो इट विल increase very fast in exponential fashion. So if the number density has increased, the resistivity will go down because it is inversely proportional to resistivity. ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा.
ठीक ना? ठीक है क्या? हाँ तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लो, द नंबर डेंसिटी ऑफ लिखो, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर टी, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर टी, number density of electrons at temperature T is given by n of T is equal to n naught into the power minus Eg divided by kBT। थोड़ा बच्चा सा फार्मूला है बट ठीक है। Eg क्या है? Eg क्या है? Eg का क्या होता है? Eg होता है आपका, हाँ क्या बोलो, एनर्जी गैप, हाँ बैंड गैप एनर्जी। देखो इन सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, देयर आर टू बैंड्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये क्या होगा? वैलेंस बैंड और यहाँ पर कंडक्शन बैंड। फॉर कंडक्शन टू हैपन यू शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड यू शुड हैव होल्स इन द बैलेंस बैंड। तो एज यू प्रोवाइड सम एनर्जी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है कंडक्शन बैंड में। ये जो गैप है दोनों के बीच ना, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। बात समझ में आ रहा है? दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में तभी वो कंडक्ट कर सकता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है? तो जो गैप है जो उसको जंप करना है, दैट गैप इज कॉल्ड एज द एनर्जी गैप। ठीक ठीक ठीक, राइट? नाउ एस रो इज inversely proportional to 1 by proportional to n, so we can write 1 by rho t is equal to 1 by rho naught into e की power, है ना? क्वेश्चन किससे है? 1 by रो से ना। जहां जहां n था वहां मैंने क्या कर दिया, 1 by रो और 1 by रो नॉट लिख दिया। ठीक बोल रहा हूं क्या? क्या बन जाएगा? रो एट टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस ई जी बाय के बी टी, फिर के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे मैं लिखता हूँ, therefore the resistivity of semiconductors, the resistivity of semiconductors and also insulators, the resistivity of semiconductors and insulators increases rapidly with the decrease in temperature, है ना? increases rapidly, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, है ना? increases rapidly with the decrease in temperature, increases rapidly with the decrease in temperature and becomes infinitely large as t tends to 0, and becomes infinitely large as t tends to 0। ये यहाँ नेगेटिव नहीं होता है ना, जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसको उधर ले गया तो ये नेगेटिव से हट के पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक और लिख दो, इफ एनर्जी गैप इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if energy gap is less than 1 electron volt, the resistivity is not very high, the resistivity is not very high, so at room temperature, at room temperature the resistivity is not very high and the substance is a semiconductor। if energy gap is less than 1 electron volt, है ना, less than or equal to 1 electron volt, then जो मटेरियल है वो एक सेमी कंडक्टर होता है। इफ Eg एनर्जी गैप इज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, देन द सब्सटेंस इज एन इंसुलेटर।
अगर ग्राफिकली दिखाना पड़ जाए आपको, तो अगर मान लो एक बात करते हैं एक फॉर सेमीकंडक्टर, ये आपका रो है और ये आपका टेम्परेचर है, तो इनका वेरिएशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप। इट इज डिक्रीजिंग विथ रैपिडली विथ डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ही आपका टेम्परेचर घट रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या, बोलो तो क्लियर है ना। अभी हमने बात किया मेटल्स का, अभी हमने बात किया सेमीकंडक्टर्स का, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का। प्लीज वो ग्राफ ड्रॉ कर लो, आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का। लिख लो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, the interionic attractions decrease. The interionic attractions decrease in case of electrolytes, है ना। In case of electrolytes क्या हो जाएगा, the liquid will become less viscous। क्या होगा पहले तो, the liquid will become less viscous, एक बात। दूसरा, इंटरआयोनिक अट्रैक्शंस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर जो आपका क्या बोलेंगे कंडक्टर्स है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आपका आयंस है, वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा एंड इट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो लिख लो, एंड ऑल्सो द विस्कस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the interionic attractions decrease and also the viscous forces decrease. The interionic attractions decrease and also the viscous forces decrease. And the ions move more freely. And the ions move more freely. ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। इट कैन बी अ थ्योरी क्वेश्चन, माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। लिख लो, why alloys like constantan and manganese, why are alloys like, why are alloys like constantan and manganese used for making standard resistors? Used for making standard resistors. Why are alloys like constantan and manganese used for making standard resistors? एकदम पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, these alloys have high value of resistivity. High value of resistivity. दूसरा पॉइंट, they have very small temperature coefficient. Very small temperature coefficient. अल्फा क्या होता है इनका, बहुत छोटा होता है। इनका अल्फा क्या होता है, बहुत छोटा। So their resistance does not change appreciably. So their resistance does not change appreciably even for several degrees rise of temperature. Even for several degrees rise of temperature.
टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या था? द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आपका जो कोफिशिएंट वैल्यू है बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा कि द राइज इन इवन इफ यू हैव अ हाई राइज इन टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज अप्रिशिएबली, इट विल होल्ड द रेजिस्टिविटी। ठीक है ना? मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, करंट में कुछ ऑल्टरेशन वगैरह नहीं होगा, है ना? तो ये अपने लिए फायदा का चीज है। नेक्स्ट देखो, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। और देखते कैसे करना है। इट इज सेइंग दैट रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट, तो आर नॉट कितना हो गया 5 ओम, राइट, एंड आर 100 हो गया 5.39 ओम। आर टी कितना दिया है? ठीक, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। नाउ वी नो दैट आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, where R naught is the resistance at 0 degree Celsius and T is the change in temperature. So you can write RT minus R naught is equal to R naught into alpha T. है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ क्या? है ना? So I can write, दूसरा you can write R100 minus R naught is also R naught alpha into 100। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये बात क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार मैंने ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया? T के लिए, जो निकालना है मेरे को, और एक बार किसके लिए लगाया? 100 के लिए, जो दिया हुआ है मेरे को। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। खटैक 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 खटैक, क्या अभी टी निकल जाएगा क्या? आर टी आपको कितना दिया हुआ है? 5.975 माइनस 5 डिवाइड बाय 5.39 माइनस 5 इज इक्वल टू टी अपॉन 100। टी निकल जाएगा इससे? यस, 5.795 है ना, 795 कितना आएगा? 0.795 डिवाइड बाय 0.39 is equal to T by 100। Get the value of T। समझ गया क्या? देखो तो आंसर कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? समथिंग अराउंड 203 आ रहा है क्या? द आंसर इज समथिंग अराउंड, समझ आ रहा है बाबू? हुआ? अगर ये वाला हो जाए, अरे रे एक सेकेंड, अगर ये वाला हो जाए then try the next question।
ये पूरा एक ही क्वेश्चन है ना, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, पूरा एक ही क्वेश्चन है। ट्राई द क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। T1 कितना दिया हुआ है? 27, राइट। R1 दिया हुआ है 75.3। ना 230 वोल्ट सप्लाई पे अगर लेते हैं, द करंट इज 2.68, तो R2 आपका कितना हो जाएगा? 230 अपॉन 2.68, राइट, है ना, दैट इज 85.8। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो प्लीज। इतना इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अल्फा भी दिया हुआ है। अल्फा कितना दिया हुआ है? 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब पूछा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। स्टेडी टेम्परेचर आपको क्या मांगा है? T2 मांगा है। आज समझ में आ रहा है क्या? स्टार्टिंग में इतना था, बाद में इतना हो गया, जब T2 कितना ये मांगा है ना। सो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 पर यूनिट रेजिस्टेंस into alpha. So you'll have like this, T2 minus 27 is equal to R2 कितना है? 85.8 minus 75.3 divided by 75.3 into 1.7 into 10⁻⁴। ठीक ना? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। T2 माइनस 27, ये आपका आ जाएगा कितना? 10.5 है ना एवरीबॉडी, राइट, 10.5 और 17 दिए 51, 17 बजे 85 और 5 90, 17 सते 119 और 9 128। जब 1.70 है ना, यहाँ पर एक जीरो भी आता, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। T2 आपका आना चाहिए, फाइनल आंसर 847 डिग्री सेल्सियस। ये सबका आ रहा है क्या? प्लीज देखिए तो एक बार, देखिए आंसर आ रहा है क्या? 847। यस सर। ठीक है ना। अगर ये हो गया है, लेट्स मूव अहेड एंड गिव द हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, सिंपल सी बात है। ओम्स लॉ जो है किसी किसी कंडीशन में फॉलो होता है और किसी किसी कंडीशन में फॉलो नहीं होता है। While stating Ohm's law, we have clearly told if temperature and other parameters are kept constant. कहा था ना हमने, Ohm's law जो है ना, it is not a fundamental law of nature. It will not be applicable what may come, but it has got some limitations. वो limitations क्या क्या है, अपने अपने फटाफट देख लेते हैं इस चीज को। लिखो, the conductors which obey the Ohm's law are called ohmic conductors. The conductors which obey the Ohm's law are called ohmic conductors. For these conductors, the relationship V proportional to I holds good. For these conductors, the relationship V proportional to I holds good, and the resistance R is independent of the current. The resistance R
is independent of the current through the conductor. ठीक है, इनका VI ग्राफ कैसा होगा, एक और पॉइंट है लिख दो. द VI ग्राफ for ohmic conductors is a straight line passing through the origin. Is a straight line passing through the origin. In ohmic conductors, the VI graph is a straight line passing through the origin. ठीक, कोई समस्या नहीं. नेक्स्ट है, देखो, those conductors which do not obey the Ohm's law are called non-ohmic conductors. Which do not obey the Ohm's law, जो Ohm's law को obey नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं non-ohmic conductors. अच्छा, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो इसके अंदर लिखो, द VI ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. या तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन है VI ग्राफ का, बट वो ओरिजिन से पास नहीं करके यहां तक कहीं से पास कर रहा है, तो भी क्या है, नॉन ओमिक है. ओमिक कंडक्टर में क्या होगा कि द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट अगर नॉन ओमिक है तो इट कैन हैव सो मेनी टाइप्स. समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ये वाला पार्ट. In case of ohmic conductors, the VI graph will pass through the origin. It will be a straight line. But in case of a non-ohmic conductor, there can be some cases. One case might be that the VI graph is not passing through the origin. It is a straight line, but not passing through the origin. Second type can be that VI relation is non-linear. First type क्या है, कि जो ग्राफ बन रहा है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है. सेकेंड कंडीशन क्या है, द VI रिलेशन इज नॉट लीनियर, इट इज नॉन लीनियर, कुछ कर्व हो गया है वो. और क्या लिख सकते हैं हम लोग, द VI रिलेशन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज. वोल्टेज कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि रिलेशन कैसा है. समझ रहे हो गाइस, समझ में आ रहा है. इसका अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट. तो फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है मेटालिक कंडक्टर्स, मेटल्स. देखो, मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर आपका करंट छोटा है, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज लेस, देन इट इज समवॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. अगर आपका वैल्यू ऑफ करंट ज्यादा नहीं है, then it is somewhat like a straight line. But as the current increases, the linearity is not seen. बात समझ में आ रहा है क्या? यहां तक इसका बिहेवियर कैसा है, ओमिक बिहेवियर, और यहां के बाद कैसा है, नॉन ओमिक. ओमिक बिहेवियर और दूसरा में क्या है, नॉन ओमिक बिहेवियर. ठीक है ना, तो लिख दो, अ मेटालिक कंडक्टर बिकम्स अ नॉन ओमिक कंडक्टर एट हायर टेम्परेचर्स, एट हायर करंट्स. नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड. अगला एग्जांपल है, ये जो डिटेल में पढ़ेंगे, ये बस इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में. पीएन जंक्शन डायोड, इसका ग्राफ होता है थोड़ा अजीब सा है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में आगे, तो टेंशन का बात नहीं है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर आपका पॉजिटिव साइड तो ऐसा हो जाएगा, और जैसे नेगेटिव में जाएंगे आप तो बहुत हल्का करंट फ्लो करेगा, एंड अचानक से इट विल बी इंक्रीज्ड. ड्रॉ कर लो. दिस इज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड.
ठीक है, 2 एग्जांपल याद रख लो, काफी है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सुपर कंडक्टिविटी। क्या होता है बोलो? देखो, द कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, द कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी by certain metals and alloys, the complete loss of resistivity by certain metals and alloys when they are cooled below a specific temperature. The complete loss of resistivity, the complete loss of resistivity by certain metals and alloys, certain metals and alloys when they are cooled below, when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity. It's called, Sir, when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity. It's called superconductivity. इसी में आगे लिखो the temperature at which the substance undergoes a transition, the temperature at which the substance undergoes a transition from normal to superconductor, the temperature at which the substance undergoes a transition from normal conductor to superconductor in zero magnetic field, in zero magnetic field is called transition or critical temperature, TC, transition or critical temperature। मतलब क्या होगा, ऐसे कंडक्टर में अगर कोई सुपर कंडक्टर है अपने पास, उसमें अगर करंट सेटअप हो गया ना तो वो लंबे टाइम तक रहेगा, समझ में आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो चल बहुत, मतलब समझ लो कि रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया, समझ में आया? तो देखो द करंट वंस सेटअप इन द सुपर कंडक्टर, the current once set up in a superconductor persists for a very long time, persists for a very long time,